Hello everyone. In today's session, we are going to study about Newton's law of universal gravitation. We are also study about gravity and try to understand the variation in the acceleration due to gravity. A student, in 1686, Newton deeply studied the laws and theories given by Kepler and Galileo Galilei. On the basis of these theory, Newton found in our universe each and every material particle attract to other material particle with an attractive force, and this force is called gravitation. According to Newton, the attraction force between any two material particle is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to a square of distance between them. So, let's understand this law. To understand this law, let a particle A having mass m1 and other particle B having mass m2 and the distance between their centers is r1. Student, according to Newton, the attractive force between these particles is directly proportional to product of their masses, then m1 into m2. Also, this attractive force is inversely proportional to a square of distance between them. स्टूडेंट, यहाँ एक चीज़ आपको और समझनी है कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा इस लाइन के, ये जो लाइन है जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, इसी के अलोंग होगा. ये जो डायरेक्शन है कभी भी यहाँ नहीं हो सकता, इसके अलोंग, इसके अलोंग नहीं हो सकता. ये जो डायरेक्शन है वो हमेशा किसके अलोंग होगा? इन दोनों पॉइंट, दोनों मासेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा. स्टूडेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने स्टडी किया था कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी. ऑल्सो force on object B due to object A. These forces are equal in magnitude but opposite in direction. Student, if we combine these equations, then we have F is directly proportional to m1 m2 upon r square, and if we remove this proportionality sign, we have a constant G, m1, m2 and r square, and this is Newton's law of universal gravitation. This F is the force of attraction occurring between these two particles when they are separated at a distance r. Student, here capital G is universal gravitational constant, and G has value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kg square. Student, the universal gravitational constant, the value of universal gravitational constant is same, or we can say constant in everywhere in the universe. Student,
if we take m1 equals to m2 equals to 1 kg and r equals to 1 meter square, then we have F equals to G. It means the universal gravitational constant, the magnitude of universal gravitational constant is equal to force of attraction between those particles whose mass is 1 unit separated at a distance 1 meter apart. Student, this attractive force has some special properties. This force of attraction does not depend upon medium, means अगर हम दो ऑब्जेक्ट को ले लें और उन दोनों ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखें तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही होगा जितना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बाहर एयर में किसी ऑब्जेक्ट को रखें। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। हर जगह इस जो वैल्यू होगी इसकी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि जिन दो पार्टिकल्स के बीच में ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, जिनके मासेस जो हैं वो हैवी हैं एज कंपेयर टू स्मॉलर पार्टिकल, उनके मास के बीच में डिपेंड करेगा उनका प्रोडक्ट कितना है मास का, और ये डिपेंड करता है कि ये दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक, और किसी भी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करेगा। बच्चों आप ऐसा फील करेंगे कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी, या हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करें अगर, तो जो ग्रेविटेशन है वो हमें नॉर्मली लाइफ में जो रूटीन है हमारा उसमें हमें ऑब्जर्व नहीं होता। इसके पीछे का रीज़न ये है बच्चों कि हमारे नेचर में पाए जाने वाले जो 4 टाइप के फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टीज़ भी है, और प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट कि अगर यूनिवर्स के दो छोर पे हम दो मासेस को पुट करें तो भी उनके बीच में ये अट्रैक्शन काम करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी काम करेगा जब दोनों मासेस कहाँ हो, यूनिवर्स के दो छोर पे अगर हम रख दें तो भी उनके बीच में ये काम करता है। यानी जो रेंज है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि अगर न्यूक्लियर फोर्सेस की हम बात करें तो ये 60 रेंजेस फोर्स कहलाती है, शॉर्ट रेंजेस फोर्स। इनका रेंज जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻15 या 1 फेम्टोमीटर कहते हैं इसको, इसी के नियर अबाउट होता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये वीकेस्ट फोर्स तो है, जो कि 4 फोर्सेस हमें बताए गए, उन 4 फोर्सेस में ये वीकेस्ट तो है, लेकिन यूनिवर्स के दो छोर पे अगर हम पार्टिकल्स को रखें तो भी ये वहाँ काम करता रहता है। Student, if we are find out the dimension of this G, then we can write here G equals to F R square upon M1 into M2. Dimension of G, then dimension of Newton, because the unit of force is Newton. So what is dimension of Newton? M L T to the power -2, and the dimension of distance L square upon dimension of mass. So dimension of mass is M, but here 2 masses, square of mass, then we put M. This will gives us M to the power -1 L cube and T to the power -2. This is the dimension of universal gravitation constant G, and having value 6.67 10 to the power -11. Student, हम डेली रूटीन में अगर इस फोर्स को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें तो हमें ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। इसके पीछे का एक रीज़न है कि अगर आप 2 मासेस ले लीजिए, 2 मासेस आप 2 पर्सन को ले लीजिए, 2 पर्सन का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, 200। तो अगर हम यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 200 पुट कर दें, 200 पुट करें तो ये 200 मल्टीप्लाई बाई 200, और डिस्टेंस अगर 1 मीटर लें तो यहाँ 1 आ जाएगा। बच्चों, इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में जो G की वैल्यू है वो इतनी स्मॉल है
कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसके लिए जो मास है उसका बहुत ही ज़्यादा होना जरूरी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब हम फील कर सकते हैं जब दो ऑब्जेक्ट क्या हो, बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो, मासिव हो, तभी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें फील होगा। स्टूडेंट, अभी हमने बात करी थी कि नेचर में जो 4 फोर्सेस हैं, तो इनमें से अगर 2 फोर्सेस को हम कंपेयर करें, हम अगर कंपेयर करें किसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, हम किसको कंपेयर करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स E, then we found this ratio is approximately equal to 10 to the power minus 43. So here यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी कम है। तो अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में, तो वहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमें निग्लेजिबल दिखाई देगा, कम पता चलेगा। ये जो फोर्स है हमारे नेचर में पाए जाने वाले चार्ज फोर्सेस में से सबसे वीक फोर्स है। स्टूडेंट, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी की। चलिए स्टूडेंट आगे इसके बाद हम लोग ग्रेविटी को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो कुछ समय बाद सभी ऑब्जेक्ट जो हैं वो अर्थ सरफेस के तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं या नीचे आना शुरू कर देते हैं। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आती है। तो इसके बारे में न्यूटन ने बताया कि द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रेविटी के वजह से ही, गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही नीचे की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, अगर हम इस फोर्स को निकालने की कोशिश करें कि ये फोर्स कितना होगा, ये जो जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, G से। अगर अर्थ की बात हम कर रहे हैं तो आप कंसिडर करिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो 2 मासेस की बात हमने करी थी कि 2 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट को आप अर्थ कंसिडर कर लीजिए। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करें, अर्थ कंसिडर करें, तो सबसे पहले क्या करें, अर्थ ड्रॉ कर लें। ये हो गया अर्थ, ये इसका सेंटर। हमें अगर इसके रेडियस को हम RE से रिप्रेजेंट करें और इसके मास को ME से क्या करें, रिप्रेजेंट करें। कंसिडर करिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पे यहाँ पे प्लेस्ड है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। ठीक, अब इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की अगर डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी RE के इक्वल। स्टूडेंट, अगर इसके लिए हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखें न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। अर्थ का मास हमने ले लिया कितना है, ME, और रेडियस कितना होगा इसका, RE। तो अगर यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखें तो हमें फॉर्मूला मिलेगा हाफ F इक्वल्स टू कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ME into small m into distance between them, square of distance between them, RE square. Student, in previous chapter we have studied about law of motion, और आपने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स होता है m into एक्सीलरेशन। कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अगर यहाँ पे हम इस एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलें, इस ए को क्या बोलें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे यही फोर्स हम लिख सकते हैं mg इक्वल्स टू कैपिटल G ME इंटू m अपॉन RE स्क्वायर। यहाँ से हम m से m को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। G इक्वल्स टू आ जाएगा
कैपिटल G me इंटू RE²। बच्चों ये भी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर डायमेंशन लिखेंगे तो कितना आएगा, डायमेंशन LT² आएगा। ये एक्सीलरेशन के जैसा ही है, बस इसमें अंतर क्या है कि ये जो एक्सीलरेशन है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये अर्थ प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको इस फॉर्मूले में कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास दिखाई नहीं देगा। जैसे हमने जो मास यहाँ पे लिखा था स्मॉल m, वो मास इस इक्वेशन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स ये जो ग्रेविटी है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी कि जो बल्कि मास है, यानी अर्थ का मास कितना है, जिस भी प्लैनेट पे ये काम कर रहा है उसका मास कितना है, और उसके सेंटर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को हमने क्या माना है कि वो RE डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ नीचे की तरफ छोड़ें तो दोनों ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कि एक का जो मास है m1 है, दूसरे का मास m2 है एंड m2 ग्रेटर देन m1, देन ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ नीचे गिरेंगे। अगर इनको हम सेम हाइट से फॉल करते हैं, गिराते हैं, नीचे गिराते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ गिरेंगे। यानी अगर हम एक हाथी को गिराएं और उसके साथ एक बिल्ली को गिराएं तो हाथी और बिल्ली दोनों क्या होंगे, एक ही साथ नीचे गिरेंगे। ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है बच्चों। लेकिन आपने अपनी डेली लाइफ में ऐसा तो ऑब्जर्व किया नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बल्कि ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मासिव ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर हम एक स्टोन ले लें और ये चॉक ले लें, दोनों को एक साथ फॉल कराएं तो स्टोन पहले गिरेगा, चॉक बाद में गिरेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है बच्चों कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर रेजिस्टेंस है या बायंसी जिसे कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, ये सारे फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। और ऑब्जेक्ट का वेट अगर कम है तो इसके ऊपर ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर ये जो अपोजिट फोर्स है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो एयर रेजिस्टेंस हम कह लें या हम विस्कोसिटी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें ना अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं, जिससे जो लाइट ऑब्जेक्ट होता है, लाइट मास का ऑब्जेक्ट होता है, वो थोड़ा लेट से गिरता है, और जबकि जो बल्कि ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मासिव ऑब्जेक्ट होते हैं, वो पहले गिर जाते हैं। अगर हम फ्री फॉल कंडीशन की बात करें कि क्या करें कि पूरा यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करें और वैक्यूम के अंदर अगर हम दो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट को एक सेम हाइट से फॉल कराएं तो दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में, मतलब एक ही साथ अर्थ से या फिर किसी सरफेस से टकराएंगे। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। स्टूडेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है। जैसे आप सबको पता है कि यहाँ हमने स्फीयर कंसिडर किया है, ऑब्जेक्ट जो अर्थ का शेप है उसको स्फेरिकल माना है, लेकिन हम सबको पता है कि ये ऐसा नहीं है। इक्वेटर पे इसकी वैल्यू ज़्यादा है और पोल्स पे क्या है, कम है। जो हम लोगों ने जैसे इलिप्स के बारे में पढ़ा था तो इलिप्स में देखा था आपने कि v की वैल्यू जो सेमी माइनर एक्सिस है उसकी वैल्यू हमेशा लेस होती है सेमी मेजर एक्सिस से। तो पॉइंट टू पॉइंट जो रेडियस है वो बदलता रहता है, इसलिए जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी भी वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है। बच्चों अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो g की वैल्यू होती है वो आती है 9.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को आपने लैब में सिंपल पेंडुलम के हेल्प से भी फाइंड आउट किया था। स्टूडेंट हम यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को थोड़ा और डीप समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये जो वैल्यू लिखी गई है 9.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? इस मीनिंग को समझने के लिए आप कंसिडर करिए कि आप किसी ऐसे मीनार पे खड़े हैं और वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ फॉल करा रहे हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ेंगे उसकी वेलोसिटी में पर सेकेंड 9.89 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ये ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। मतलब हर सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट को आपने गिराया है नीचे की तरफ, उसकी वेलोसिटी हर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ा देती है। यानी इसकी स्पीड हर सेकेंड क्या होगी, 9.8
9 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करती रहेगी, यानी पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, ये बढ़ाती रहेगी। ये होता है इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्चुअल मीनिंग। स्टूडेंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका ग्रेविटी के बारे में। अगर आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, जहां हम लोग समझेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस से ऊपर जाने में और नीचे आने में कैसे चेंज होती है। आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। इसके बाद we are trying to find out density of earth. So let's find density of earth. Student, if we consider the shape of earth be spherical, then what is the volume of a sphere? What is the volume of a sphere? The volume of a sphere is equals to 4/3 pi r cube, where r is radius of that sphere. So if we try to find the density of earth, we have considered the shape of earth just like a sphere having radius re. So the volume of earth is equals to 4/3 pi re cube, and if the mass, we know that the density rho equals to mass per unit volume. So if we find out the mass of the earth in term of density and volume, then mass of earth me is equals to volume into density. Then what will be what is the volume? Volume 4/3 pi r e cube into rho. बच्चों, अभी हमने ग्रेविटी फाइंड आउट किया था। ग्रेविटी हमने क्या किया था, निकाला था। तो अगर ग्रेविटी के फॉर्मूले से हम लिखें तो हमें दिखेगा यहाँ पे क्या आएगा, ये जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ जी, value of me, then this will be equals to g upon re square in bracket 4/3 pi r cube into rho, and re square कट 3 से पावर क्या करेंगे, इसका कट कर दें। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा g equals to 4/3 pi re square rho into g, and the density of earth will be equal to 3g upon 4 pi capital G re स्क्वायर। बच्चों, ये हो गया फॉर्मूला। अगर डेंसिटी हमें फाइंड करना है अर्थ का, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अर्थ की डेंसिटी निकाल सकते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से डेंसिटी कैलकुलेट कर दी गई, और फिर जब एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम अर्थ की डेंसिटी की, तो ये जो रो है डेंसिटी ऑफ अर्थ,
ये आता है 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये अर्थ की डेंसिटी है। बच्चों अर्थ की डेंसिटी हर जगह इक्वल नहीं होती, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। तो हर जगह से डेंसिटी क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं और फिर कैलकुलेट करके सबका एवरेज निकाल लेते हैं। वो जो एवरेज आती है वो किसके इक्वल आएगी? 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब के इक्वल। तो ये हो गया अर्थ की डेंसिटी। इसको नोट करिए, इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब डिस्टेंस चेंज होने के साथ साथ जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी। बच्चों अभी इसके पहले जब हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करा था मैंने, तो हमने क्या किया था, कंसिडर किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो कहाँ है, अर्थ सरफेस पे है, अर्थ सरफेस पे यहाँ पे रखा था हमने। तो यहाँ के लिए अब ये डिस्टेंस कितनी है, r e, रेडियस ऑफ अर्थ। तो द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on Earth's surface, ये कितना आया था बच्चों? ये आया था G इक्वल्स टू कैपिटल G me अपॉन r स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बच्चों ये जो भी इक्वेशन है हम वो सारे इक्वेशन को किससे कैलकुलेट कर रहे हैं? कैलकुलेट करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से। तो सपोज करिए कि इस मास को हम यहाँ से डिस्प्लेस करके इस अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h है। ये अर्थ सरफेस से यहाँ तक की जो हाइट है वो किसके इक्वल है, ये हाइट h के इक्वल है। यानी ये जो मास था उसको हमने कहाँ लेके गए, अर्थ सरफेस से h हाइट एबव लेके चले गए। इसमें अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा? तो अगर हम यहीं से ऐसे कंपेयर कर लें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पे F डैश इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इंटू मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन these two points. तो what will distance? This distance is equals to RE plus H, means this distance is equals to RE plus H. Then यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? RE plus H का होल स्क्वायर। फिर इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? mg डैश इक्वल्स टू कैपिटल ME स्मॉल m अपॉन RE plus H स्क्वायर। m से m कैंसिल। यानी अगर हम h हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाएं तो वहाँ पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ग्रेविटी हमें मिलेगी g डैश इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इंटू RE प्लस H स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहाँ से इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। सो we have G dash upon G equals to G dash equals to G ME upon RE plus H स्क्वायर। और जब G की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करें, मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर दें। तो ये RE क्या हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर, और जो GME की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर। तो GME कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ से हमें मिला RE स्क्वायर। बच्चों यहाँ से RE स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, RE स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे H अपॉन RE। तो ये स्क्वायर था, इस वजह से हमने सिर्फ R कॉमन लिया। तो R कॉमन लेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो वो RE बाहर निकल जाएगा, यहाँ RE है तो 1, यहाँ पे ये आ गया वैल्यू।
तो हमें जो वैल्यू मिली वो वैल्यू कितनी मिली, वो आया g डैश इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू g इक्वल्स टू 1 प्लस h अपॉन आर ई स्क्वायर। बच्चों अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हम h हाइट अर्थ सरफेस, यहाँ हमने बनाया था फिगर, इस अर्थ के सेंटर से यहाँ तक की वैल्यू क्या है आर ई, और आगे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे h की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर h की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट आपको इस फॉर्मूले से समझने की कोशिश करिए कि a इक्वल्स टू x अपॉन वाई हमने लिखा, जहाँ ये पूरा y जो है वो 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर h की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट लेके आए, h की वैल्यू का मतलब इस पार्टिकल को क्या करें, अर्थ सरफेस से और दूर लेके जाएं हम, तो यहाँ पे ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर इस पूरे टर्म की वैल्यू इंक्रीज करी तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ से आप देखिए एज y इंक्रीज a डिक्रीजेस। ठीक, जैसे जैसे y की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, क्योंकि g तो हमारे पास फिक्स है, ये वैल्यू क्या होगा, फिक्स रखा हमने, और जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगा a की वैल्यू क्या होगा, उसी के साथ घटना स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे h बढ़ेगा इस पूरे ब्रैकेट टर्म की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और उसी के साथ g की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। इट मीन्स कि अगर हम अर्थ सरफेस पे ऊपर की तरफ जाएं, अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और कर लें बच्चों, हमने मैथमेटिकल टूल्स में बायनोमियल्स थ्योरम पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। बायनोमियल्स थ्योरम में हमने बताया था कि अगर कहीं इक्वेशन लिखा हो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो बायनोमियल्स एक्सपेंशन अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू n। ठीक, स्टूडेंट अगर इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करें तो आप जरा देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम g डैश इक्वल्स टू g इन ब्रैकेट 1 प्लस h अपॉन आर ई एंड माइनस 2 लिख सकते हैं ना इसको। तो अगर हम इस टर्म का बायनोमियल एक्सपेंशन करें तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये हो गया g, यहाँ पे जैसे देखिए ये है क्या 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है h अपॉन आर ई, तो उसी के जैसे एक्सपेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1, और n की जगह क्या है, यहाँ n इक्वल्स टू है -2 एंड x इक्वल्स टू h अपॉन आर ई। तो इसी से क्या करें, एक्सपेंशन करें, तो n की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो n था तो प्लस n रखा है, यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ क्या लिख देंगे -2, फिर x लिखेंगे तो x की जगह क्या है h अपॉन आर ई, तो ये हो जाएगा h अपॉन आर ई अप टू सो ऑन। स्टूडेंट आप जैसे देखेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, फिर ये 2, फिर h स्क्वायर करेंगे, फिर आर ई, तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी आगे और छोटी होती जाएगी, तो 1 के कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक कंडीशन है, और ये इक्वेशन हम तभी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन हम कब लिखेंगे, हम तभी लिख सकते हैं जब h इज लेसर देन रेडियस ऑफ अर्थ। जो h की वैल्यू है वो अर्थ रेडियस से क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, तभी इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। और अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। बच्चों ये आगे भी टर्म आएगा, फिर माइनस में आएगा, फिर क्या लिखेंगे यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर 2h क्यूब अपॉन आर ई। अब देखो h क्यूब जो है, h की वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत कम होगा, और जैसे जैसे हम पावर रेज करते जाएंगे ये नीचे वाली वैल्यू क्या आती जाएगी, 1 के कंपैरिजन में और छोटी, ये
h बहुत स्मॉल होगा, और किसी स्मॉल क्वांटिटी का आप क्यूब करिए तो वो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। जैसे अगर हमारे पास 0.01 है, इसका स्क्वायर करें तो ये कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे जैसे जैसे हम पावर रेज करते जाएंगे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी। तो इस वजह से 1 के कंपेरिजन में हम इधर के सारी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हमें कितना मिल जाएगा, सिर्फ इतनी वैल्यू, और इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये हो गया अगर h की वैल्यू जो है, जो हाइट है, जिस हाइट पे हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, उसकी वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर h की वैल्यू लार्जर है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक बच्चों, दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करें। चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन acceleration due to gravity। बच्चों इसको जरा ध्यान से समझिए, फिर वही फिगर ड्रॉ करें। मान लें कि अर्थ कैसा है, एक स्फेरिकल शेप का है, और इसके लिए हम एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों यहाँ। बच्चों अगर ये सेंटर है अर्थ का, तो आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी RE, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। बच्चों अगर यहाँ से हम एक होल बनाएं और इस होल से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, RE होगी, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ यहाँ ड्रॉप करें, और ऑब्जेक्ट कंसिडर करिए कि यहाँ पे है। यहाँ पे होने का मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट को कितना नीचे भेजा है, h हाइट, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ये हो गया h हाइट से। ठीक, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा कि सेंटर के अलोंग एक होल बनाया और उस होल से किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट नीचे भेजा। ठीक बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अभी आपने देखा कि ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये h हाइट अगर हम निकाल दें तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, ये हाइट हो जाएगी RE माइनस h के इक्वल। ठीक, अब अगर इसको रेडियस लेके इस ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस को, कितनी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है RE माइनस h, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस हाइट, जिस हाइट से हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को नीचे भेजा। इसको रेडियस लेके अगर हम यहाँ पे एक और स्फीयर कंसिडर कर लें, एक और स्फीयर क्या करें, कंसिडर करें, तो इसके लिए भी तो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि मास चेंज हो गया। अब जब h हाइट हम नीचे आएंगे तो पूरे अर्थ का मास तो अब हम कंसिडर करेंगे नहीं, हम तो उतना मास कंसिडर करेंगे जितना h हाइट नीचे है। तो h हाइट जितना मास है उसके लिए निकाल लें। तो अगर इसका मास निकालना हो हमें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, me डैश मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ whose radius equals to RE minus h। ठीक, तो मास निकालने के लिए अभी आपने देखा कि कैसे निकालते हैं मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इस स्फीयर का कितना हो जाएगा, इसका इस होगा 4/3 पाई RE माइनस h क्यूब इनटू डेंसिटी। यहाँ क्या कर दें, डेंसिटी। बच्चों ये टर्म समझ में आया आपको। हमें अब तो पूरे अर्थ का मास नहीं ले सकते हम, क्यों, क्योंकि यहाँ तक लेंगे, जैसे ही हम पूरे अर्थ का मास लेंगे तो रेडियस ये पूरा आएगा। लेकिन अभी पार्टिकल जो है, अब मान लो कि इस जगह पे प्लेस है ना, तो इस जगह पे अगर ऑब्जेक्ट निकालना है, अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे अगर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो जब हम ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो हमें ये डिस्टेंस लेनी होगी। तो जब ये डिस्टेंस लेंगे तो RE माइनस h होगा, और तब जब RE माइनस h होगा तो इसका मास भी तो चेंज हो जाएगा। तो उस मास को हमने कितना लिखा, me इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पूरे पार्ट का, ये जो पूरा पार्ट है अंदर वाला, इस पार्ट का हमने क्या लिख लिया, वॉल्यूम। तो ये पूरा 4/3 पाई RE माइनस h क्यूब, ये क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक,
अब हम इसके लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं। तो इसके लिए मान लो बच्चों कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो कितनी होगी, हम मान लेते हैं कि mg डैश होगा, यही आएगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लिखें तो mg डैश इनटू क्या लिखेंगे, कैपिटल G, फिर लिखेंगे मास ना, तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 4/3 पाई re माइनस h क्यूब इंटू डेंसिटी, ये लिख सकते हैं हम। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या कर लें, नीचे लिख सकते हैं हम इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों re माइनस एच स्क्वायर। अब यहाँ से अच्छा इंटू एम भी तो लिखना होगा, इंटू एम लिख दिया, तो m से m कैंसिल, यहाँ से g की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से g की वैल्यू g डैश जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 4/3 पाई इंटू जी। ये देखो re माइनस एच स्क्वायर, re माइनस एच क्यूब, तो क्यूब से ये स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल होगा, तो यहाँ हमें मिला re माइनस एच इंटू रो अपॉन में तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। बच्चों अगर आप एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ सरफेस पे निकालें, तो सरफेस पे अगर हम चले जाएं तो ये h हाइट नीचे थी ना उस सरफेस से, अभी जो हमने फिगर ड्रॉ किया था इसमें ये h हाइट क्या है, नीचे है। अगर हम सरफेस पे चले जाएं तो सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, इसी h की जगह क्या कर दें, 0 कर दें, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले के टर्म में ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे जाएंगे कैसे, h की वैल्यू पुट कर दें 0, तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे। तो यहाँ अगर हम ग्रेविटी मान लें कि कितना है g, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4/3 पाई g, और यहाँ हो जाएगा re इंटू रो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब यहाँ से अगर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रिलेशन निकालना है दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से g डैश अपॉन g लिख लेते हैं, मिल जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, ऊपर आ गया 4/3 पाई g re माइनस एच इंटू रो, अपॉन नीचे कितना लिख देंगे 4/3 पाई g, यहाँ कितना हो जाएगा re इंटू रो से रो कैंसिल, 4/3 पाई g से 4/3 पाई g कैंसिल, मिला क्या हमें, हमें मिला बच्चों g डैश अपॉन g इक्वल्स टू re माइनस एच अपॉन re, या हम लोग लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को g डैश इक्वल्स टू g, डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा re अपॉन re माइनस एच अपॉन re, ये आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, re अपॉन re कैंसिल हो गया, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं 1। बच्चों ये हो गया अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज कितना आएगा। तो ये ग्रेविटी क्या है, ये ग्रेविटी h हाइट नीचे है, और ये जो ग्रेविटी है ये क्या है, अर्थ सरफेस पे इक्वल है। बच्चों अब यहाँ से आप देखिए कि जैसे जैसे h हम बढ़ाएंगे, मतलब हम अर्थ के सेंटर के टूवर्ड्स जैसे जैसे मूव करेंगे h की वैल्यू बढ़ेगी, re तो फिक्स रहेगा क्योंकि ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये वैल्यू फिक्स है। तो जैसे जैसे h बढ़ाएंगे ये वैल्यू क्या होगी, ये बढ़ने लगेगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन ये इंक्रीज्ड वैल्यू 1 में से ही तो सब्ट्रैक्ट होगी, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे मान लो 1 में से हमने क्या किया, ये 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा, लेकिन 1 में से अगर आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0.5 आएगा। तो जैसे जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, इधर वाली वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स है
हो तो सब्ट्रैक्ट 1 में से ही रहा है, तो अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और अगर ये कम वैल्यू से हमने g से मल्टीप्लाई किया तो g डैश की वैल्यू क्या आएगी, वो भी कम आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम सेंटर के टुवर्ड्स बढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, फिर कम होना शुरू हो जाएगी। और अर्थ सरफेस के अगर हम ऊपर जा रहे हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को, अभी हमने देखा कि ऊपर जाने पे भी क्या हो रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रही है, और नीचे जाने पे भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ सरफेस पे ही क्या रहेगी, मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे यानी टुवर्ड सेंटर बढ़ेंगे तो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, घटती जाएगी, और सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया आज का टॉपिक। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे।